Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 24 regarding the course Issues in Accounting Practices. And today's our topic is accounting and the time value of money. So that's our topic, what the time value of money is and how it is being related to the accounting. इसका क्या effect पड़ता है accounting में, ये आज का हमारा topic है और इसी के ऊपर हम analyze करेंगे कि how the time value of money works and how does it has all the effect on the accounting. So these things would be studied today कि हम इसमें देखेंगे. इससे पहले हमने क्या किया था, हमने इससे पहले देखा था कि what is taxes, what is post retirement पेंशन बेनिफिट प्लान, वो हमने सारा स्टडी किया था. देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व्ड इन दैट previous two lectures, but we have studied them. However, in the last lecture we are going to reconsider or revisit these topics again. हम आखिरी लेक्चर में इसे दोबारा से go through करेंगे because ये technicalities एक दफा और अगर आपको बता दी जाएं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, because you need require it a more clear or you can say a more clear thoughts regarding these two topics. So we are going to revisit in our lecture number 32 जो हमारा last lecture होगा, उसमें हम लोग दोबारा ये चीज cover up करेंगे. So first today's topic that is of accounting and the time value of money. These are our learning objectives. However, this topic will be covered in our this lecture and the next lecture because ये बहुत broad topic है, तो हम इसे full 2 lectures में cover up करेंगे कि accounting और time value of money को कैसे आपस में link है और किस तरह ये आपस में relate करती हैं और किस तरह इन दोनों का एक दूसरे पे effect आता है. So first, starting with the learning objective of the today's, आइडेंटिफाई अकाउंटिंग टॉपिक्स वेयर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रेलेवेंट. कौन कौन से टॉपिक्स में अकाउंटिंग के टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिक्वायर्ड है. डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, हम ये जरूर देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. यूज अप्रोप्रिएट कंपाउंड इंटरेस्ट टेबल्स, ये याद रखिएगा ये जो इंटरेस्ट टेबल्स हैं ये हम फर्स्ट टाइम आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं कि इंटरेस्ट टेबल्स होते क्या हैं और किस तरह बनते हैं, क्या चीजें होती हैं, किस तरह ये डेवलप होते हैं, इसकी वैल्यूज कहां से आती हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फंडामेंटल्स टू सॉल्विंग इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स, सॉल्व फ्यूचर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन प्रॉब्लम, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन, दैट इज अ होल थिंग. If I am going to provide them in a inverted comma, so that will be a present value of 1. That means कि present value of 1 record करना, that is an important thing. कि हम present value of 1 हम लोग कैसे record करते हैं. तो solve future and present value of 1. कि आज का 1 रुपया फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी और अगर हमें फ्यूचर के 1 रुपया की आज क्या वैल्यू होगी. That is known as present value of 1 problems. कि इसे हम कहते हैं that is known as present value of 1. That is the whole web of our today's topic. First of all, we see the basic time value concepts. Time value concept है क्या, किस तरह होता है. Applications देखेंगे, nature of interest देखेंगे, simple interest देखेंगे, compound interest देखेंगे, fundamental variables देखेंगे, single sum problems देखनी है, future value of single sum देखनी है, present value of single sum देखनी है, solving the other unknowns. These are the today's topic that we are going to cover in the today's lecture. Now, basis of time value of money. Time value of money है क्या? A relationship between time and money. A dollar received today is worth more than the dollar promised at the some time in future. कि जो भी हमारे पास, जो भी यानी यूं समझ लें कि जो भी हमारे पास डॉलर है उसकी अगर वैल्यू कोई आज है, आज का डॉलर कल के डॉलर या फ्यूचर के डॉलर में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. यानी कि अगर मैं कहूं कि आज का 1 डॉलर कल के 1 डॉलर के बराबर है तो नहीं है, या कल का डॉलर आज के 1 डॉलर के बराबर है तो नहीं है. इनको एक्चुअली अफेक्ट क्या करती हैं, क्या चीजें इन्हें डिफरेंशिएट करती हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि किस तरह किस चीजों पे डिफरेंशिएट करती है. हम लोग हर दफा कहते हैं कि आज का एक वैल्यू का 1 डॉलर कल के 1 डॉलर के इक्वल नहीं है. क्यों नहीं है, क्या रीजंस हैं. देखिए याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं कि डॉलर 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग दैट इज कम्युलेटिंग इन दैट स्पेसिफिक थिंग, कि वो इस चीज को कम्युलेट करने में स्पेसिफिक थिंग पे आ रहा है. तो उसे एक स्पेसिफिक होना जरूरी है. यानी मीन्स टू से कि कोई चीज है जो इसकी वैल्यू को आज और कल की वैल्यू को डिफरेंशिएट करती है, लेकिन वो वैल्यू क्यों है और किस तरह डिफरेंशिएट करती है, दैट वी आर गोइंग टू सी. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरह आती है, तो मैं कहता हूं सबसे पहली चीज क्या आती है,
उसके बारे में कि आज की वैल्यू और कल की वैल्यू को डिफरेंस कौन सी चीज डालती है, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सबसे पहले इफेक्ट डालती है, देन उसके बाद अगली चीज कौन सी इफेक्ट डालती है, दैट इज ऑफ योर रिस्क। किसको पता है कल क्या होगा? किसी को पता है? नो वे, किसी को नहीं पता। तो आप रखते हो कि यार पता नहीं फ्यूचर में ये वापस करे ना करे, क्या पता ये कहीं रह जाए कहीं ना करे, मे भी इसका डिफॉल्ट कर जाए, तो आप रिस्क का फैक्टर रखते हो। दो चीजों का खतरा होता है आपको। तीसरी चीज आपको क्या इंपैक्ट कर रही होती है, दैट इज योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू, दैट व्हाट वी टॉक अबाउट, कि इन्फ्लेशन, रिस्क और टाइम वैल्यू, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपके आज के रुपए को कल के रुपए के इक्वल बराबर नहीं होने देती। जब वो आज का और कल के वैल्यू को बराबर नहीं होने देती, इट मींस कि दैट दीज थिंग्स हैव एन इंपैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ मनी। इन्फ्लेशन क्या है, क्या होता है, वफराते ज़र, कि आज की अगर मैं सपोज एक चीज जो वो 10 रुपीज की आ रही है, कोई भी चीज 10 रुपीज की आ रही है, कल वो 10 रुपीज की नहीं आएगी। हम लोग सब जानते हैं, थोड़े से पहले देखते थे तो हमारे पास क्या था, 1 रुपए की एक टॉफी आ जाती थी, लेकिन आजकल 1 रुपए की टॉफी भी नहीं आती, 2 रुपए की आती है। इसका मतलब है टॉफी महंगी हुई? नहीं, हमारे पैसे की वैल्यू कम हुई है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आता है सबसे पहले, कि इन्फ्लेशन इसे आज के और कल के वैल्यू को बराबर होने में मदद नहीं देती। मींस टू से इन्फ्लेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो अफराते ज़र बढ़ा है उससे पैसे की वैल्यू कम हो गई है। दैट्स व्हाई 1 रुपी ऑफ टुडे इज नॉट इक्वल टू 1 रुपी ऑफ फ्यूचर। सेम इज द केस विद रिस्क। आपको अगर वो बंदा ज्यादा रिस्की लगता है, आपको लगता है कि यार इसने पिया भी मेरे पैसे वापस नहीं किए थे, या इसने इस बंदे के पैसे वापस नहीं किए थे, तो क्या पता मेरे पैसे ही वापस करे ना करे। किसी को अगर आपने उधार दिए, या आपको कोई चांसेस लगते हैं कि यार पता नहीं अगर मैं ये चीज अभी खरीद लूं तो आगे मे भी फ्यूचर में क्या हो, किस तरह हो, क्योंकि फ्यूचर को किसी को नहीं पता, तो रिस्क इन्वॉल्व होता है। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। ये तीन चीजें हैं, ये याद रखिएगा, ये मिला के जब बनती हैं उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट रेट। और इसी इंटरेस्ट रेट की वजह से हम कल का और आज का पैसे को बराबर करेंगे इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो यही कह रहा है ना, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड मनी एंड द डॉलर रिसीव टुडे वर्थ मोर देन द डॉलर प्रॉमिस्ड एट सम टाइम इन फ्यूचर। यानी अगर आज का रुपया जो है कल के 1 रुपए से ज्यादा वर्थ रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज फ्यूचर में क्या होना है, इन्फ्लेशन ही बढ़ना है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, और टाइम वैल्यू भी आएगा। क्योंकि आप जब अगर आपने किसी को उधार दिया या लोन दिया तो आप क्या करेंगे, आपने अपनी आज की जरूरत को कुर्बान किया है उसकी जरूरत पूरी करने के लिए। तो जो आपने कुर्बान किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए आपको कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो दैट इज नोन एज टाइम वैल्यू। तो यहां पे आ गया दैट कम्युलेट्स टू फॉर्म इंटरेस्ट रेट। तो इसका मतलब है आज के वैल्यू और कल के वैल्यू को कौन बराबर करता है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। हाउ इट इक्वलाइज, लेट्स सी। नाउ वेयर इज द एप्लीकेशंस ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ कॉन्सेप्ट अप्लाई कहां होता है? सबसे पहले नोट्स रिसीवेबल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, नोट्स पेएबल को इवैल्यूएट करने में बहुत ज्यादा यूज होता है। सेकंड, लीजेस, दैट इज आवर फर्दर टॉपिक। हम लोग इसे फर्दर अभी हम लोग स्टडी करेंगे। लीजेस को आप देखेंगे, लीजेस में हर चीज जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इवैल्यूएट होगी। पेंशन एंड अदर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें भी आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी चाहिए। किस तरह? वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर स्लाइड्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स, उनको भी इवैल्यूएट हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से कर रहे हैं। शेयर्ड बेस्ड कंपनसेशन, इसको भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर ही एनालाइज कर रहे हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशंस, बिजनेस कॉम्बिनेशंस में भी चाहिए होगा कि दो बिजनेस को अगर मैंने एवेल्युएट करना है तो ये भी मेरी बिजनेस कॉम्बिनेशन में आएगा। डिस्क्लोजर्स, किस तरह डिस्क्लोज करनी है? डिस्क्लोजर मींस कि आपने किसी चीज की एक्चुअल वैल्यू डिस्क्लोज करनी है, तो उसे हम लोग एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। एंड एनवायरमेंटल लायबिलिटीज के लिए भी चाहिए होंगी, जैसे हमने पढ़ा था इन कंटीजेंट लायबिलिटीज कि एनवायरमेंटल लायबिलिटी को भी हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही डील करेंगे। नाउ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की क्या नेचर है? अभी तो मैंने कुछ बता दी, आपको पता भी लग गया कि फर्स्ट क्या है इन्फ्लेशन, दूसरी क्या है आपके पास रिस्क, एंड थर्ड इज टाइम वैल्यू। इन तीनों को मिलाएं तो इंटरेस्ट बनता है। नेचर क्या है जी? पेमेंट फॉर यूज ऑफ मनी। अब अगर मैंने किसी को 100 रुपए उधार दिए, वो मेरी पैसे यूज कर रहा है ना, तो मुझे उस पैसे के ऊपर रेंट चार्ज करना चाहिए ना। जैसे आप घर किसी का यूज करते हैं तो इसका मतलब है आप रेंट चार्ज करते हैं, किसी की चीज रिक्वायर यूज करते हैं तो आपको रेंट मिलता है। सेम इज द केस विद मनी। सो इंटरेस्ट इज एक्चुअली अ रेंट फॉर अ मनी,
कि मनी के ऊपर कितना रेंट होना चाहिए, ये उस चीज को शो करेगा। एक्सेस कैश रिसीव्ड और रीपेड ओवर द अमाउंट बोरोड, यानी जो भी मैं ओवर एंड अबव, यानी कि अगर मैं 100 रुपए, तो 100 रुपए के ऊपर जो भी मैं दूंगा उसे कहेंगे हम इंटरेस्ट, एंड इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं, रेंट फॉर मनी। वेरिएबल्स इन इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, जब भी हम इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं उसके लिए क्या चीज रिकॉर्ड होती है, वन इज नोन एज प्रिंसिपल, द अमाउंट बोरोड, 100 रुपए अगर आपसे किसी ने उधार लिया है तो 100 रुपए इज योर इंटरेस्ट, क्या कहलाएगा वो, इंटरेस्ट कहलाएगा। यानी सॉरी 100 रुपीज इज योर प्रिंसिपल, क्या कहलाएगा वो, दैट इज योर प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल अमाउंट इज 100 रुपीज। इंटरेस्ट रेट, मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन प्लस टाइम वैल्यू प्लस योर रिस्क, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटरेस्ट रेट मींस इन्फ्लेशन रेट, रिस्क रेट एंड टाइम वैल्यू, जो भी आपका रेट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज टाइम, दैट इज नोन एज एन, इसे हम लोग अभी आगे फर्दर डिनोट करेंगे बिकॉज ऑफ एन, कि एन क्या है और किस तरह ये वर्क करता है। सो दिया वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट व्हाट इज, अच्छा यहां पे देखिए दो तरह के इंटरेस्ट अब अलग हो गए, एक कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो तरह के डिफरेंट इंटरेस्ट। अभी हमने इंटरेस्ट तो बता दिया किस किस चीज को मिलकर बना है, हमने ये बता दिया कि रिस्क है, इन्फ्लेशन है, और साथ ही क्या चीज है इसके अंदर, दैट इज योर टाइम वैल्यू, तो इन दोनों को मिलाया इंटरेस्ट बन गया। अब इंटरेस्ट चार्ज भी करना है ना, मैं अगर 100 रुपए किसी ने मुझसे उधार लिए तो मैं उस पर 10% चार्ज करूंगा, तो मैं कहूंगा हाँ जी 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट है, एक तरीका ये। एक और तरीका भी है इसको कि चार्ज किस तरह करना है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को देखते हैं, इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल ओनली, किस पे ये इंटरेस्ट कंप्यूट होता है, सिर्फ प्रिंसिपल। अगर मैंने 100 रुपए लोन किसी को दिया है, मैं सिर्फ उस पे इंटरेस्ट काटूंगा या उस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, तो उसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहेंगे उसे हम, सिंपल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन देखिए, बास्टो इलेक्ट्रिक इनकॉर्पोरेशन बोरोस $10,000 फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 8% पर ईयर, यानी कितने बोरो कर रहा है वो, 10,000, दैट इज योर प्रिंसिपल, 3 years योर टाइम, रेट इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% है। कंप्यूट द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर 1 year, तो एनुअल इंटरेस्ट पे करना है, तो एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे देखिएगा, इंटरेस्ट P इंटू आई इंटू एन, तो क्या कर रहे हैं अगॉर्ड देखिएगा, 10,000 इंटू 0.08 इंटू 1 है ना, क्योंकि पर ईयर है तो 1 से उसने कर दिया n, तो दैट इज 800। अभी हमारे पास क्या आ गया 800। अब वो क्या क्यों हमने 8 का है, कंप्यूट द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड फॉर 1 year, यानी कि जो इंटरेस्ट पे किया जाए फॉर 1 year, तो हमने n को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि ये फाइंड करते फॉर द 3 years, तो तब क्या करते हैं n, देन n वुड बी we minus 8 and we put 3 over here, and that answer would be changed, that is also being multiplied by 3, so that equals to form 2400। तो ये हमारे पास चेंज आती है अगर वो कहता 3 years का, तो ये हमारे पास जब चेंज आती है तो हम कहते हैं दैट इज नोन एज योर एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल इंटरेस्ट का मतलब है साल भर का। 3 years का इंटरेस्ट कैसे निकाला, जिस तरह हमने भी निकाला 2400, लेकिन उसने मांगा किसका था, सिर्फ 1 year का मांगा था, तो हमने सिर्फ 1 year का लिख के उसे दे दिया कि दैट इज आवर 1 year इंटरेस्ट, कि ये हमारा 1 year इंटरेस्ट है, और इसी को हमने कहा कि दैट इज आवर एनुअल इंटरेस्ट। फेडरल लॉ रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स ऑन एनुअल बेसिस, यानी फेडरल लॉ किसको कहता है कि अपना हर साल का एनुअल इंटरेस्ट बताओ। ये नहीं कि आप 3 साल का कंबाइन, हमने 3 साल का कंबाइन किया ना, लेकिन फेडरल लॉ कहता है कि आपने उसे ईयर बाय ईयर शो करें, कि 3 साल का लोन है तो हर साल कितना इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है वो अलग करें, बेशक पे ना करें लेकिन इंटरेस्ट को इंटरेस्ट पेएबल जरूर बनाएं। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स हाउ द सिंपल इंटरेस्ट वर्क्स। अब ये किस पे हमने काटा है इंटरेस्ट, दैट इज ऑन प्रिंसिपल। किस पे, किस अमाउंट पे काटा है, प्रिंसिपल अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट रेट को डिडक्ट किया है। नाउ इंटरेस्ट कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल ओनली, सिर्फ प्रिंसिपल पे अगर इंटरेस्ट कंप्यूट हो, देन इलस्ट्रेशन, बेस्टो इलेक्ट्रिक इनकॉर्पोरेशन बोरोस $10,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर, कंप्यूट द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन 3 years। नाउ जो मैंने पहले कैलकुलेशन की थी यहां देखें, वो कैलकुलेशन हुई है एग्जैक्टली 2400 जिस तरह हमने निकाला था, ठीक है ना। तो दैट इज टोटल इंटरेस्ट, वहां पे क्या लिखा था, एनुअल इंटरेस्ट, यहां क्या लिखा है
टोटल इंटरेस्ट एंड फेडरल लॉ रिक्वायर्स द डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस। ये हमने टोटल इंटरेस्ट फाइंड किया फॉर वैल्यूएशन, बट रिपोर्टिंग कैसे करनी है? एनुअली करनी है। रिपोर्टिंग वुड ऑलवेज बी डन एनुअली, यानी हमने हमेशा किसकी रिपोर्टिंग करनी है? एनुअल बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी है। Now simple interest, interest computed on principal only। Now partial year का निकाल रहे हैं हम। किसका निकाल रहे हैं? partial। देखिए अभी हमने annual देख लिया, total देख लिया। one thing is remaining now, that is of partial years। ये partial years का भी हमने interest को देखना है। Let's see an example। On October 1, 2012, Bristol Electric Corporation borrowed 10,000 for 3 months at the rate of 7% per year. Compute the total interest to be paid for the year ended December 31st, 2012। यानी अब 3 साल नहीं है, सिर्फ 3 महीने है। So what we are going to do? Interest into P into I into N। P is same 10,000, I is 0.07। What about N? अब N निकालना है तो N के लिए क्या करेंगे? देयर इज अ फ्रैक्शन। किसका यूज करेंगे? फ्रैक्शन ऑफ कितने साल में महीने होते हैं? 12, और उसमें से कितने इंटरेस्ट आ रहा है? 3 का, तो क्या आ जाएगा? 3/12। so that is here you can see that 10,000 into 0.08 into 3 divided by 12, so that is your overall interest amount। इसे ही क्या कहेंगे हम? इंटरेस्ट अमाउंट है। and that is our total of 200 only। that is a partial year interest rate, क्योंकि सिर्फ 3 महीने क्या था इंटरेस्ट रेट जो हमने इसमें कैलकुलेट किया है, यानी only of 3 months। compound interest is there। compute इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखें सिंपल तो समझ आ गया, P इंटू आई इंटू एन, लेकिन कंपाउंड क्या है? वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे तो चार्ज होता है, साथ साथ जो पिछले साल का हमने इंटरेस्ट कमा चुके हैं उस पे भी वो क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर मैंने कहा जी सपोज 10% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड में, तो पहले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपए पे 10% तो 110। नेक्स्ट ईयर मुझे 100 रुपए पे सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि कितने में मिलेगा? 110 पे इंटरेस्ट लगेगा। यानी मेरा जो प्रिंसिपल है दैट गॉट चेंज फ्रॉम 100 टू 110, बिकॉज वो जो इंटरेस्ट था वो हम ये रिज्यूम करेंगे दैट गॉट री इन्वेस्टेड, वो दोबारा री इन्वेस्ट हो गया है। इंटरेस्ट अर्न दैट हैज नॉट बीइंग पेड और विड्रॉन, जो इंटरेस्ट पे नहीं किया गया और या जिसे आपने नहीं निकाला, तो उसे हम कहेंगे दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। मोस्ट बिजनेस सिचुएशंस यूज कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारी बिजनेस सिचुएशंस ऐसी हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करती हैं, बल्कि याद रखिएगा जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज करते हैं। नोबडी यूज सिंपल इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट रेट यूज नहीं किया जाता, दैट वुडंट बी यूज्ड, वो उसे कभी भी यूज नहीं करते। यानी you can say it's an interest over an interest is known as compound interest, यानी ये interest over interest है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, यानी फ्यूचर वैल्यू। अब देखें हमने पढ़ लिया इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया। Now what the next thing is? Next thing is a future value of single amount, कि single amount की future value निकालनी है। The future value of single amount is the amount of money that dollar will grow at some point in time। यानी आज का 100 रुपए कल के कितने रुपए के बराबर होना है, यानी कल आज के 100 रुपए की कल कितनी वैल्यू होगी, यानी आज के 100 रुपए कल कितने रुपए के बराबर होगा। यानी अगर मैं कहूं आज का 100 रुपए कल के 110 रुपए के बराबर है, तो इसका मतलब है दैट हाउ आई आइडेंटिफाई दैट 10 रुपीज हैज इंक्रीज्ड। मैं किस तरह फाइंड करूंगा कि 10 रुपए इंक्रीज कर गया है। तो ये चीज मैंने वहां पे देखनी है कि ये किस तरह मुझे पता लगे कि कितना इंक्रीज कर गया है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट द डॉलर विल grow at any some point in future। For example, नीचे example, assume we deposit 1,000 for 3 years that earns 6% interest compounded annually। 1,000 into 1.06 equals to 1060 and 10। अब देखें यहां पे क्या होना चाहिए था नीचे, गौर से अगर आप इसे देखें दिस वन, यहां पे असूलन अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो यहां पे 1,000 होता ना, बट यहां पे क्या है 1060 पिछला वाला ईयर, और उससे नीचे भी यहां पे भी 1000 होना चाहिए था, बट वेयर व्हाट इट इज, इट्स ऑफ 1123, यानी कि पिछले वाले की
रिजल्ट अमाउंट। सो दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क, यानी कि आपने फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट कमाया है, नेक्स्ट ईयर उस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों पे लगेगा इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, और उससे नेक्स्ट ईयर तीनों साल का जमा करके लगेगा, दैट इज 1191.02। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज आर कंपाउंड इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट ओवर एन इंटरेस्ट इज नोन एज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को तो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। Future value of a single amount. Writing in a more efficient way, we can say that 1192,000 raised to power 3 FV is equal to PV into 1 plus I के power n. Number of compounding of period that is there, यानी ये जो n है, if I am going to extend it, याद रखिएगा ये this one, this is interest, this is your overall present value at the beginning and that is your future value. तो ये हमारे पास कहलाएगा, that is our whole formula. You can see that that is our whole formula for the overall finding future value. Now if I am going to say कि हमने future value उससे निकालनी, तो इसका मतलब मैं हमेशा present से future में जा सकता हूँ, future से present में नहीं आ सकता। अगर मुझे कोई आज कहता है कि हाँ जी मैं आपको completely फ्यूचर में 10,000 रुपए दूंगा, तो मुझे आज कुछ पैसे दे दें, तो आपको कितने देने चाहिए? तो इसका मतलब है आपको फ्यूचर की अमाउंट पता है, प्रेजेंट की नहीं पता। तो आपने जब ये आपके पास सिचुएशन है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट्स सी ओवर देयर, दैट मींस एफ वी इक्वल्स पी वी 1 प्लस आई की पावर एन, यही था ना फार्मूला। मैं पीवी को एक साइड पे रखता हूं, तो यहां पे अगर रीअरेंज करूं तो ये आंसर क्वेश्चन कुछ ये हो जाएगा ना, एफ वी ओवर 1 प्लस आई की पावर एन। तो ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कि मुझे पास फ्यूचर गिवन है और मैंने क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो दैट मींस दिस फार्मूला कैन बी रीअरेंज्ड, इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। और रीअरेंज कैसे कर सकते हैं? एफ पी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी ओवर 1 प्लस आई की पावर एन। यानी हम फ्यूचर से प्रेजेंट भी फाइंड कर सकते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर भी फाइंड कर सकते हैं। वी कैन डू बोथ थिंग्स, हम वो दोनों चीजें इसमें आराम से कर सकते हैं। Now future value of single amount, use the future value of $1 table. We find that the factor for for 6% and 3 period is 1.1, so we can solve our problem like this. FV is equal to 1000 into 1.19. Now what is that table? कि हमारे पास future value of $1 table क्या है? देखिए, अगर मैं एक चीज अब सेपरेट करूंगा, एक चीज होती है जिससे उसमें कहा जाता है कंपाउंडिंग फैक्टर और एक को कहा जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू राइट फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई की पावर एन, जो ये हिस्सा है ना, दिस वन एक्सक्लूडिंग पीवी, इसे कहा जाता है कंपाउंडिंग फैक्टर। इसे कहा जाता है कंपाउंडिंग फैक्टर। अब मेरे पास अगर कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया है, तो इसका मतलब है सिर्फ इस फैक्टर को फाइंड करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? 1 इज आई, 1 इज एन। मुझे और तो कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है ना, कि एक मुझे आई चाहिए और एक मुझे एन चाहिए। तो अगर मेरे पास सिर्फ 2 डायमेंशन हैं, एक कॉलम और एक रो, तो मैं पूरा टेबल आराम से नहीं बना सकता। मैं कहूं यहां पे सपोज इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टेबल लाइक दिस इज अ टेबल, मैं कहूं जी ईयर 1 2 3 और यहां इंटरेस्ट रख दूं 1%, 2%, 3%, 4%। तो क्या मैं 1% 1 ईयर पे फाइंड नहीं कर सकता? यहां पे कंपाउंड फैक्टर कर सकता हूं ना मैं, कंपाउंड फैक्टर फाइंड। इस तरह 2 और अगर 2% मेरे पास इंटरेस्ट रेट और 1 ईयर हो, तो मैं कंपाउंड फैक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, वो फाइंड कर सकता हूं। तो ये जो 1.19 है, याद रखिएगा ये क्या चीज है? ये आपका कंपाउंडिंग फैक्टर है। क्या है? ये आपका कंपाउंडिंग फैक्टर है जो इस टेबल के थ्रू बना है। यानी एक्चुअल में ये जो 1.19 है, ये कैसे आया देखिएगा। 1 प्लस कितना इंटरेस्ट रेट था? दैट इज 0.06
की पावर 3। तो अगर आप इसका एक्चुअल आंसर निकालेंगे तो आंसर वुड बी 1.102, और यही इसी को इंक्लूड करके हमने क्या किया, टेबल बना ली है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है, 1191.02, दैट इज आवर फ्यूचर वैल्यू। Now present, instead of asking what the future value of current amount, we might want to know what amount we invest today to accumulate a known future amount। यानी ये जरूरी नहीं है कि what future value of current amount, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कहूं कि आज की वैल्यू कल कितनी वैल्यू की होगी, वो इंपॉर्टेंट है क्या? मैं कहूं ठीक है कल जितनी भी होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितनी अमाउंट आज इन्वेस्ट करें टू गेट द फ्यूचर नोन अमाउंट। कि मैं ये कहूं कि अच्छा मैं आज 1000 आज की जो है वो 3 साल बाद कितनी वैल्यू होगी, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, दैट हैज द लीस्ट यूज। बट मैं कहूं कि यार मैंने फ्यूचर में मेरा टारगेट है कि मेरे पास 10,000 रुपए सेव हो जाए, तो मुझे आज कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कि आपने नॉन फ्यूचर अमाउंट को फाइंड करने के लिए ये फाइंड करना है कि आपको आज कितने इन्वेस्ट करने चाहिए। सो दैट इज नोन एज नॉन फ्यूचर अमाउंट। दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन। इसे कहते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन, कि मैं इसमें प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट इज टुडेज इक्विवेलेंट टू पर्टिकुलर अमाउंट इन फ्यूचर। यानी आज की वैल्यू सिंगल अमाउंट जो है वो कल की फ्यूचर अमाउंट जो है वो आज के प्रेजेंट वैल्यू के कितने बराबर है। मीन्स टू से इट्स अ रिवर्स केस। नाउ रिमेंबर your equation that is of fv is equal to pv 1 plus I की पावर n, यही पढ़ा ना हमने। we can solve it, जो भी मैंने बनाया था कैसे बनाया था, pv is equals to fv divided by 1 plus I की पावर n, that is got rearranged। इसे क्या किया हमने, रीअरेंज कर दिया, pv equals to fv over 1 plus I की पावर n। तो ये हमारे पास आ गया pv that is now फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है इससे। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इसमें गौर से देखिएगा, दैट इज ऑफ पीवी एफ ओवर 1 प्लस आई की पावर एन, ये है ना। इसे मैं थोड़ा और सही करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर एन, एंड दैट इज होल ब्रैकेट। नाउ दिस होल अमाउंट excluding FV is known as discounting factor। This is known as discounting factor। तो यहां पे भी याद रखिएगा, ये जो 1 प्लस आई 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर एन से हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कहते हैं। तो दैट मीन्स जब मैंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी तो मैं कंपाउंडिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन अगर मैंने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम इज द केस, कंपाउंडिंग का मतलब है जमा होना, बढ़ना, डिस्काउंटिंग का मतलब है कम होना। तो अगर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू से मेरी हमेशा प्रेजेंट कम होती है ना, तो इसका मतलब है फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में आना है तो ऐसा फैक्टर चाहिए जो फ्यूचर वैल्यू को रिड्यूस करे। तो दैट मीन्स इट्स अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। और मुझे अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करी तो प्रेजेंट वैल्यू को ऐसा मुझे मीनिंग चाहिए जो प्रेजेंट वैल्यू को फर्दर बढ़ा दे, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। तो दैट इज नोन एज आवर डिस्काउंटिंग फैक्टर। Now present value of single amount. Assume you plan to buy a new car in 5 years and you think it will cost 20,000। आपने कहा है कि 5 साल बाद मैं कार परचेज करता हूं और आपको लग रहा है कि ये 5 साल बाद मुझे $20,000 की मिल जाएगी। एट दैट टाइम व्हाट अमाउंट मस्ट यू इन्वेस्ट टुडे, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको 5 साल के आखिर में आपके पास कितने इकट्ठे हो जाएं, दैट इज ऑफ $20,000 in order to accumulate 20,000 in 5 years if you can earn 8% interest compounded annually। यानी अगर आप इंटरेस्ट कितना कमा सकें, 8% compounded annually। now what you are going to do, सिंपल सा केस है ना, दैट इज नाउ फ्यूचर पता है, प्रेजेंट नहीं पता, तो इसका मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ओवर हियर, फ्यूचर वैल्यू इज ऑफ 20,000 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 की पावर 5। The answer would be known as your present value amount that you should invest today in order to get 20,000 after 5 years। That is how, so that you can see that। अब यहां पे क्या किया उसने, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, गौर से देखिएगा, दैट इज 1 ओवर 1 प्लस 0.08
की पावर 5, ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और यही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से उसने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया 20,000 को, तो दैट बीइंग नोन एज 113,611। यानी आज मैं अगर $13,611 लगाऊंगा तो मुझे 5 साल बाद कितना मिल जाएगा, $20,000। और इसी को कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 टेबल। बिकॉज $1 क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे पास 1 ओवर होता है ना, यानी हम फ्यूचर वैल्यू क्या कर रहे होते हैं, 1 से ऊपर रख रहे होते हैं, यही बात है ना। तो इसका मतलब है अगर 1 है ऊपर तो इसका मतलब है $1 हुआ, तो यानी फ्यूचर वैल्यू इज $1, तो दैट व्हाई इट इज नोन एज $1 टेबल। इफ यू डिपॉजिट 13,611.60 नाउ एट 8% एनुअल इंटरेस्ट, यू विल हैव $20,000 एट द एंड ऑफ 5 years। यानी आपके पास कितने होंगे, $20,000 एट द एंड ऑफ 5 years। सॉल्विंग द अदर वैल्यूज। अब अदर वैल्यूज सॉल्विंग कैसे हो सकती है, यानी कि अगर मैंने सारा चीजें फाइंड कर ली, प्रेजेंट भी निकल रही, फ्यूचर भी निकल रही, क्या इसमें से आई और एन भी निकल सकते हैं? क्या हम इसमें से इंटरेस्ट रेट भी फाइंड कर सकते हैं? क्या हम इसमें से एन नंबर ऑफ ईयर्स भी फाइंड कर सकते हैं? तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सी। ये आपने को ऑलरेडी पता है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, यानी इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग आर नोन एज अदर वैल्यूज। इसी को कहते हैं क्या, अदर वैल्यूज। देयर आर 4 वेरिएबल्स नीडेड व्हेन डिटरमिनिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 4 वेरिएबल्स हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट, टाइम। तो कह रहा है कि 2 तो हमें पता लग गए। इफ यू नो द 3 ऑफ दीज, द 4th कैन बी डिटरमिन्ड। याद रखिएगा, इन चारों में से अगर 3 पता है, चौथा आराम से पता लग सकता है, दैट्स इजी। तो एटलीस्ट हम लोग इनमें से 2 भी और भी फाइंड कर सकते हैं, आई भी फाइंड हो सकता है और एन भी फाइंड हो सकता है। Now determining the unknown rate. Suppose a friend wants to know $1,000 today and promise to repay you at $1092 2 years from now. What is the annual interest rate? 2 years भी पता है, फ्यूचर की वैल्यू भी उसने बता दी 1092, प्रेजेंट वैल्यू भी बता दी दैट इज 1000। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इट, वी हैव टू फाइंड आई। जब आई फाइंड करेंगे तो दैट मींस टू वी कैन इजीली आइडेंटिफाई आई। तो आई की रिजल्ट क्या आ रहा है देखिएगा, सी। एंड हाउ इट कम्स, गौर से देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 टेबल 1192 इंटू आई। अब ये 1000 टेबल को कैसे देखा होगा, देखिए, इफ आई एम गोइंग टू डॉट हियर, दैट इज द टेबल। मैं कहूंगा 1 2 3, और यहां पे इंटरेस्ट होंगे 1 2%, 3%, 4%, 5%। मैं क्या करूंगा, यहां पे एग्जैक्टली देखूंगा, अच्छा 3 इयर्स तो मेरे पास कंफर्म है, और यहां पे मैं आराम से इसे देखता जा रहा हूं साथ साथ कि यार ये कितनी अमाउंट आ रही है, ठीक है ना। तो अमाउंट निकाल लूंगा, या इसका एक और तरीका ये है, मेरे पास फार्मूला क्या था, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एफ वी इंटू 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर एन, ये था ना। जब मेरे पास ये आ रहा था तो इसका मतलब है मैं अगर 1 प्लस आई की पावर एन एक साइड पे रख दूं तो ये कर सकता हूं एफ वी ओवर पीवी। जब मैंने ये कर दिया एफ वी ओवर पीवी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे हमारे पास एफ पी ओवर पीवी, यानी कि मैं अगर 1092 को डिवाइड करूं किससे, 1000 से, तो इसका मतलब है दैट मींस 1000 को डिवाइड करूं 1092 से, तो इसका मतलब है दैट मींस आई हैव द कंपाउंडिंग फैक्टर, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंडिंग फैक्टर है वो मेरे पास आ जाएगा, या मैं इसके थ्रू डिस्काउंटिंग फैक्टर भी निकाल सकता हूं। सो द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.915। अब मैं 0.915 को किस में ढूंढूंगा, टेबल में ढूंढूंगा कि टेबल में ये किस जगह लाई कर रहा है। जिस इंटरेस्ट रेट के नीचे ये लाई कर रहा होगा मैं वहीं से लगाऊंगा, यानी सर्च द पीवी ऑफ $1 टेबल इन रो 2 फॉर दिस वैल्यू, यानी ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे कि किस जगह लाई कर रही है। नाउ द बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशंस कैसे वर्क करती हैं, और देखिएगा। Tumalskizik company deposit $10,000 in the last national bank where it can earn simple interest rate of 9% per year. Now simple interest rate, it deposit another 10,000 in the first state bank where it will earn compound interest rate of 9% per year compounded annually. In both cases, Tumalskizik will not withdraw any interest until 3 years from now till the date of deposit. यानी 3 साल तक वो कोई इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट उसमें से विड्रॉ नहीं करेगा टिल द डिपॉजिट। तो लास्ट नेशनल बैंक और फर्स्ट स्टेट बैंक। अब लास्ट नेशनल बैंक में देखिए
10,000 9% 900 आया, 10,000 9% 900 अगेन आया, थर्ड ईयर 10,900, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन आ रही है वैल्यू। यानी गौर से देखें तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यूमुलेटेड ईयर बैलेंस आपके पास इंटरेस्ट आया 2700, क्यों हुआ? 10,000 प्लस 900, तो ये होगा 10,900, 10,000 प्लस 900। अब यहाँ पे क्या किया, ऊपर से कम्युलेट भी होते जा रहा है। यहाँ गौर से देखें 10,900 में ऐड हुआ 900, तो 11,800 हो गया, एंड देन अगेन 900, तो दैट इज नॉट 12,700। अब यहां पे कितना आ रहा है देखिए, कंपाउंडिंग में आ रहा है इंटरेस्ट इज 2950। क्यों ज्यादा आ रहा है? बिकॉज इंटरेस्ट जो वो कमा रहा है वो अज्यूम किया जा रहा है कि ये री इन्वेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये री इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसीलिए उसे यहां पे समझाया जा रहा है कि दैट गॉट टू बी री इन्वेस्टेड, कि ये दोबारा री इन्वेस्ट हो गया है। कैसे इन्वेस्ट हुआ? गौर से देखें, 10,000 इंटू 9%, 900 आया, 10,900। नाउ अगला इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? 10,000 में? नो, इट्स ऑन 10,900, दैट इज 10,900, और उस पे आया 981, तो 11,881 आया। फिर नेक्स्ट टाइम 11,881 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो दैट इज ऑफ 1069, सो दैट इज 12,950। जो इनके बीच का डिफरेंस है 250.29, इसे इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं दैट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं हम? कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी ये इसे कहेंगे दैट इज नोन टू बी आर कंपाउंडिंग, यानी टोटल कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना पड़ रहा है ये हमारे सामने नजर आ रहा है। These are the compound interest tables जो मैं बात कर रहा था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के टेबल्स हैं। पहला टेबल कहलाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन। क्या मैं फ्यूचर वैल्यू अगर फाइंड करनी है वन की तो कैसे फाइंड करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन फाइंड करनी है तो मैं कैसे, कौन सा फैक्टर लगाऊंगा? यानी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन का फार्मूला लगाऊंगा। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन का मैं टेबल लगाऊंगा। टेबल 3 जो होता है ऑर्डिनरी एन्युटी का, ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ वन, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट में, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाउएवर आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू विद ऑल द टेबल्स, सो यू हैव अ क्लियर आइडिया कि ये कैसे कितने टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर ईयर। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि नंबर ऑफ ईयर्स, एन क्या थे? एन को हम लोग कंसिडर कर रहे थे दैट इज आवर पीरियड, एन इज इक्वल टू ईयर्स, बट नॉट दिस, नॉट एक्चुअली इट। नंबर ऑफ पीरियड्स का मतलब वो कहे जी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है सेमी एनुअली, तो साल में कितनी दफा इंटरेस्ट मिला? 2 दफा। 5 साल है तो इसका मतलब है कितने कंपाउंडिंग पीरियड हुए? दैट मीन्स 5 इंटू 2, तो दैट मीन्स 10 कंपाउंडिंग पीरियड थे। अगर वो कहे कि मेरे जो है इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली मिल रहा है, तो इसका मतलब है कितने पर ईयर, कितने टाइम्स इन अ ईयर हुए? 4 टाइम्स, दैट मीन्स 5 इंटू 4। क्या हो जाएगा वो? 5 इंटू 4, तो दैट इज आर नोन एज नंबर ऑफ पीरियड्स। तो इसका मतलब है, इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये होगा कि पावर अभी हमने n रखते थे ना, फिर हमारी पावर हो जाएगी n इंटू m, और इंटरेस्ट रेट को भी हम डिवाइड कर देंगे m। सो द फार्मूला वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये देखिएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस i ओवर m n into m, where m is the number of compounding in year, compounding in year. So that what we known as our compounding, and that compounding period interest rate annual rate divided by नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर। जो आई ओवर एम का है उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग पीरियड इंटरेस्ट रेट। जो आई ओवर एम है दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग पीरियड इंटरेस्ट रेट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट कैसे निकल रहा है, गौर से देखिएगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ, अब यहां पे देखें, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 एट कंपाउंडेड, यानी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी 1 की, ये हमने फाइंड करना है। यानी इन अदर वर्ड्स द फार्मूला विल बी लाइक दिस। दैट इज आवर फार्मूला। ये हमारा फार्मूला यूज हो रहा है। तो यहां पे पीरियड दिए हुए और साथ देखें 9, 10, 11 तीनों इंटरेस्ट रेट के आगे हमने कैलकुलेशंस भी दी हैं। तो हाउ मच इन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट आर डॉलर क्यूमुलेट टू द एंड ऑफ ईच ऑफ द 5 ईयर एट 3 डिफरेंट interest rates of compounding period that we are going to find.
कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, फॉर्मूला टू डिटरमिन द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज FVF। अब यहां FVF से बनता क्या है, गौर से देखिए कि नोटेशन है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसे क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और N स्टैंड्स फॉर ईयर्स, I स्टैंड या नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स, एंड I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट। ये किससे इक्वल होता है, 1 प्लस I की पावर N, यानी इसे ही हम कहते हैं दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। यही हमारे पास है, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि इसे नोन एज कंपाउंडिंग फैक्टर, तो इसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर या कंपाउंडिंग फैक्टर। बोथ नेम्स आर फॉर इट, यानी यही होते हैं इसके नाम, जिसके ऊपर हम कहते हैं दैट इज नोन एज कंपाउंडिंग फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। FVF यानी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर N पीरियड एट I इंटरेस्ट, N नंबर ऑफ पीरियड, I रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सिंगल पीरियड, यानी ये चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं फॉर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर की। तो दैट मीन्स यही चीज यूज करते हुए मैं क्या डेवलप कर लूंगा, आर फ्यूचर वैल्यू टेबल, या क्या डेवलप कर लेंगे, FVIF। देखिए अगर गौर से मैं देखूं तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना, तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 1, तो इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, 1 रुपए प्रेजेंट वैल्यू की, तो इसीलिए कहते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट, determine the number of period by multiplying the number of years involved by number of compounding period। एनुअली का मतलब क्या होता है, साल में एक बार पेमेंट हो रही है। सेमी एनुअल का मतलब है साल में कितनी हो रही है, 2। क्वार्टरली कितने क्वार्टर होंगे, 4, 3 महीने के 4 क्वार्टर होंगे, तो दैट मींस 4, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। एंड मंथली कितना होगा, दैट इज ऑफ 12, यानी साल महीने में कितने 12 दफा पेमेंट हो रही है मंथली। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पहले इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे अगर एनुअली तो 1 से, then you divide it by, अगर सेमी एनुअली तो that is divided by 2, and the last में क्या होगा, that is 0.12 divided by 4, and then for monthly 0.12 divided by 12। तो ये सब चीजें हमारे पास सामने होती हैं जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड कैसे होंगे, जैसे मैंने बताया था N into M, और M क्या है, ये क्वार्टरली, पहले सेमी एनुअल के लिए क्या होगा, 2 होगा, क्वार्टरली 4 हो जाएगा, मंथली 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ रही है, दैट इज M, और N into M यानी 5 into 1, 5 into 2, 5 into 4, 5 क्या है, 5 ईयर्स है, और 5 into 12 यानी जो भी आएगा फिर हमारी पावर में N into M होगा, नॉट ओनली N। क्लियर है, तो ये चीजें हमारे पास आएंगी, इंटरेस्ट को इस तरह मैनिपुलेट करना है और कंपाउंडिंग पीरियड्स को हमने ऐसे मैनिपुलेट करना है। Now 9% interest compounded daily provides 9.42। अब यहां पे क्या आ रहा है, हमने उसको दोबारा चेंज किया है, कैसे चेंज किया है, that we are going to see now। 9% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली प्रोवाइड्स 9.42 यील्ड। अब तक हम लोग किसको मैनिपुलेट कर रहे थे, हम फार्मूले में M से डिवाइड कर रहे थे, N into M कर रहे थे। Now where that yields come, ये यील्ड आई कहां से साथ, कैसे आई है सामने, इसके लिए हम लोगों ने फाइंड की है इफेक्टिव यील्ड। इफेक्टिव यील्ड का फार्मूला होता है, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द इफेक्टिव यील्ड फार्मूला, गौर से देखिएगा। इफेक्टिव यील्ड, E स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव यील्ड, Y स्टैंड्स फॉर यील्ड, 1 प्लस I ओवर M होल पावर M माइनस 1। तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा इफेक्टिव यील्ड, यानी जो भी M है, जो भी M है उसे मैं एज इट इज यहां पुट कर दूंगा, -1 करूंगा, इंटरेस्ट करूंगा, तो मेरे पास इफेक्टिव यील्ड आएगा। याद अभी हमने शुरू की क्लास में देखा था, शुरू की अभी लेक्चर में देखा था कि एक स्लाइड पे लिखा हुआ था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड ऑफ 250.69, इतना ही था ना। वो मैंने क्या कहा था, दैट इज कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक तरीका ये कि मैं वैल्यू जो है वो बढ़ा लूं बाय 250, एक तरीका ये कि उस 250 के हिसाब से मैं अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूं, 250 के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूं। अगर मैं ये सोचूंगा कि मैं अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर लेता हूं तो इसका मतलब है मैं इफेक्टिव यील्ड फाइंड कर रहा हूं। और ये मैंने वो जो जितना भी चेंज था या जितना भी अमाउंट की जो डिफरेंस था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, इंटरेस्ट रेट में, और अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया। और जब मैंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा लिया तो दैट लीड्स टू द 9.42। अब कंपाउंडेड डेली का क्या मतलब हुआ, कितने दिन होते हैं साल में, दैट इज ऑफ 365। तो M कितना हो जाएगा, दैट इज ऑफ 365। तो यहां पे भी M हो जाएगा, वहां भी M हो जाएगा, तो यहां पे आपके पास इफेक्टिव यील्ड आ जाएगी। तो इफेक्टिव यील्ड फॉर 10,000 इन्वेस्टमेंट इज लाइक दिस,
इंटरेस्ट रेट 8% है, एनुअली कितना 8% आ रहा है, सेमी एनुअली 8. अब क्यों बढ़ता है? अब देखें एनुअली में नॉर्मल इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव यील्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज यहां पे एम जो है फार्मूले में वो भी 1 होगा, एम भी 1 होगा, तो चेंज तो कोई भी नहीं आएगा. हाँ, चेंज कब आएगा? जब देयर इज अ कंपाउंडिंग मोर देन ईयर. तो जब ईयर में ज्यादा कंपाउंडिंग हो रही है तो यू कैन सी दैट जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग है उतना ही इफेक्टिव यील्ड बढ़ती जा रही है. यू कैन सी दैट इज ऑफ 9%, 9.2, 9.31, 9.38, 9.42. सेम इज द केस विद 10%, 10.25, 10.38, 10.47 एंड 10.52. तो ये यील्ड कैसे निकली है? यूजिंग दिस फार्मूला. इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज इफेक्टिव यील्ड. अगर आप इफेक्टिव यील्ड यूज कर रहे हैं तो यू डोंट रिक्वायर टू ओरिजिनली टू डिवाइड द ओरिजिनली और मल्टीप्लाई द ओरिजिनली बाय एम. यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यूज होंगी, जो ओरिजिनल फार्मूला, उसे आपको एम का उसमें से रोल खत्म हो जाएगा, आप उसमें से एम ओमिट कर देंगे. यू यूज द नॉर्मल फार्मूला. आप नॉर्मल फार्मूला यूज करेंगे फॉर दैट स्पेसिफिक थिंग. Now there are certain fundamental variables, that is of rate of interest, number of time periods, future value, present value, as we are seeing. Now how you can see that present value at time 0, future value in the 5 years, number of periods, that is also being interest rate. टू कैटेगरीज, अननोन प्रेजेंट वैल्यू होती है, अननोन फ्यूचर वैल्यू होती है. नाउ अभी हमने पहले सारा फार्मूले के थ्रू देखा है, अब हम किसकी तरफ एनालाइज कर रहे हैं? यूजिंग द टेबल्स. अभी हम लोग जितनी भी थी हम लोग सारा फार्मूले पे डिपेंडेंट थे. नाउ जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है ये रिगार्डिंग किससे है? ये रिगार्डिंग योर टेबल यूजेज है. कि अब हम जितने भी आगे क्वेश्चन करेंगे दैट रिक्वायर्स टेबल, के टेबल कैसे बनते हैं और एक्चुअल दिखाएंगे कि टेबल कैसे यूज हो रहा है. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. Future value of single sum. Value of future can be given as FV is equal to PV into FVIF. FVIF किसके इक्वल था? पढ़ा था ना अभी. FVF equals to 1 plus I की पावर n. यही कहा था ना. तो उसने ऑलरेडी उसको वैल्यू दे दी FVF की, यानी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. तो FVF फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर n पीरियड ऑफ एट I इंटरेस्ट. तो यही हम लोग यूज करेंगे आगे फार्मूला फॉर सीइंग द टेबल्स. Bruegger Corporation wants to determine the future value of $50,000 invested for 5 years compounded annually at the interest rate of 11%. कितना इंटरेस्ट रेट है? 11% इंटरेस्ट रेट है, 5 years है. नाउ हमारे पास FPF को फाइंड करेंगे किसमें? 5% और 11% इंटरेस्ट रेट पे. तो जिसमें हमारे पास, अब देखें यहाँ पे उसने अल्टरनेटिव में टेबल में नहीं किया बल्कि फार्मूला पुट कर दिया 1 plus I की पावर n का. गौर से देखें 1 plus 0.11 होल पावर 5. तो 50 into 1.68506, तो दैट इक्वल्स टू फॉर्म 84,253. तो ये फ्यूचर वैल्यू बनेगी इस 50,000 की. नाउ अल्टरनेट कैलकुलेशंस कैसे हो सकती हैं? ये तो फार्मूले के थ्रू भी कर लिया, एफईआई की वजह से भी कर लिया, वही सब कुछ है. व्हाट टेबल डू वी यूज? सबसे पहला क्वेश्चन इसके साथ राइज ये होता है कि हमने अभी फार्मूले से तो कर लिया, लेकिन अगर हमारे सामने टेबल पढ़े हों और हमने 5 तरह के टेबल पढ़े हैं, उन 5 में से कौन सा टेबल यूज करेंगे फॉर एनालाइजिंग दिस वन? तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि कौन सा टेबल इसमें बेहतर है और कौन सा टेबल इसमें ज्यादा फिट आता है. दिस वन अ टेबल. अब क्या है हमारे पास? हम लोगों ने टेबल कौन सा यूज कर रहे हैं? दैट इज फ्यूचर वैल्यू फैक्टर. कौन सा टेबल है ये? फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, FVF. इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और अज्यूम कर रहे हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1. अज्यूम क्या कर रहे हैं हम? दैट प्रेजेंट वैल्यू इज 1. अब मेरे पास क्या है? इंटरेस्ट 11% है और पीरियड कितना है? 5. तो ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड आप देखें तो ये आपके पास दिए हुए क्या? पीरियड्स. और यहां पे आपके पास क्या दिए हुए? इंटरेस्ट दिए हुए. अब मेरा इंटरेस्ट कौन सा है? 11 और पीरियड्स कितने हैं? 5. If I'm going to draw a line over there, straight towards this point. So what I have got? 11%, 5 years, this is my amount. And you can say future value factor. इसे क्या कहेंगे हम? future value factor, because हमारा इंटरेस्ट रेट यही था ना. तो हमने दोनों को सीरीज में देखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है. तो 50,000 into that is 1.6506 मल्टीप्लाई किया तो देन वी हैव अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ 84,253 US डॉलर्स. तो ये हाउ वी आर गोइंग टू यूज द टेबल. दैट इज द वे टू यूज द टेबल, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम.
देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम, एक और एग्जांपल देखते हैं। Bob Anderson invested $15,000 today in a fund that will earn 3% compounded annually. To what amount will the investor grow in 3 years? आज उसने कितना इन्वेस्ट किया है? 15,000। फ्यूचर में 3 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी? दैट वी आर गोइंग टू सी। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 15,000 है। फ्यूचर वैल्यू कहां आनी है? 3 साल बाद आनी है। तो फ्यूचर वैल्यू पे देखें एरो लगा हुआ है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज द टेबल। अब हमें क्या फाइंड करनी है? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी। तो कौन सा टेबल यूज करना चाहिए? वी हैव द टेबल ऑफ, अगेन फ्यूचर वैल्यू एनविटी। फाइंड क्या करना है? फ्यूचर वैल्यू एनविटी फाइंड करनी है। प्रेजेंट तो गिवन है, या तो प्रेजेंट फाइंड करनी हो, हमने भी फ्यूचर फाइंड करनी है। तो नाउ कितने इंटरेस्ट रेट था? 8% था। तो 8 हियर इट इज 8। और कितना ईयर्स था? दैट इज ऑफ 3 years। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओवर देयर टू सी वेयर डज इट लाई, एंड इट लाइज ओवर हियर। दैट इज द पॉइंट, यहां पे लाई कर रहा है ना। So that means that is our compounding factor that we are going to use. So that is the point and that is our 1.2571. So हमारे पास फ्यूचर में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18,896. That is our future value. इसी को हम कहते हैं that is our future value known for that. प्रूफ, आप इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? बिगनिंग बैलेंस 15,000 था, 8% था, 12% इंटरेस्ट था, 15,000 में 12% ऐड किया 1200, तो क्या आ गया? 16,200। नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 16,200 पे, 15 पे तो नहीं लगेगा। सो दैट मीन 16,200 पे फिर 8% लगाया। देन अगर हमारे पास आया 17,496, अब वो नेक्स्ट टाइम 16,200 भी नहीं यूज होगा बल्कि 17,496 यूज होगा। उस पे 8% लिया, 1,400, 17,496, दैट इज 18,896। ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी। सो यू कैन प्रूव इट इंडिविजुअली। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं इंडिविजुअली बाय यूजिंग द फार्मूला। Bob Anderson invested $15,000 today in a fund that will earn 8% compounded annually. To what amount will the investor grow in 3 years? तो वो यहाँ पे हमारे पास आ गया था 18,896. Now present value $15,000, future value निकाली थी हमने, तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है? चेंज क्या है? एग्जाम्पल वही है। Now it's semi annually, वहां एनुअली था, अब क्या आ गया? सेमी एनुअली आ गया। बाकी टेबल वही है। अब हमने क्या करना है? हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंडिंग्स कितनी हो जाएंगी? n इंटू एम, यही बात है ना। तो यहां पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नाउ n रिक्वायर 6 और i कितना हो जाएगा? i ओवर m हो जाएगा। तो i 8% डिवाइड बाय 2 दैट इज ऑफ 4%। ये हमारे पास हो गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी 4% एंड 6% इन अ टेबल। वही टेबल है। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 4% एंड 6। अब गौर से देखें, 6 ये रहा and where 4 here it is. You can see that 4 here it is. So that means what factor we are going to use? That is of this percent, and that answer would be 18,980. That is our answer for that specific thing. Or you can say it's a value of the कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब चेंज आया, वैल्यू में हल्का सा चेंज आया, देखें बढ़ गई है, 892 से 980 आ गई, थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें। बिकॉज बढ़ क्यों गई है? बिकॉज नाउ कंपाउंडिंग, जो आधे साल में इंटरेस्ट था वो दोबारा इन्वेस्ट हो गया, तो इसीलिए यहां पे वैल्यू हायर आई है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल फंड, अभी तक फ्यूचर वैल्यू से खेलते रहे। आप देखें प्रेजेंट वैल्यू से किस तरह हम लोगों ने अपने इसे मैनिपुलेट या उसे देखना है। वैल्यू नाउ गिवन अमाउंट टू बी पेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर, यानी आज जो मैं पैसे जमा कराऊंगा फ्यूचर की कितनी अमाउंट बनेगी, आज जो पैसे जमा कराऊं कितने पैसे जमा कराऊं, ताकि मेरे पास फ्यूचर की जो अमाउंट है वो स्पेसिफिक नोन वैल्यू आ जाए। तो दैट मींस पीवी इज इक्वल टू एफपी इज इक्वल टू पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एंड पीवीएफ इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई की पावर एन। याद रखिएगा एम का ट्रीटमेंट इसमें भी वही रहेगा, ये भी एम से डिवाइड हो जाएगा, ये भी एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट issue remains the same. That is future value FV, present value PV, PVF present value factor for n periods at I. That is how we are going to find present value of single sum. What is the present value of 84,253 to be received or paid in 5 years? ये जो अमाउंट है ये हमें कब मिलेगी? 5 years के बाद मिलेगी। डिस्काउंटेड एट, अब यहां पे देखिए कंपाउंडिंग का वर्ड नहीं यूज हुआ, कौन सा यूज हुआ वर्ड?
11% पे डिस्काउंटेड एंड कंपाउंडेड मंथली, यानी ये डिस्काउंटिंग भी किस हिसाब से होगी, एनुअली के हिसाब से ही होगी, अभी कोई सेमी एनुअल कुछ भी नहीं ला रहे हैं हम बीच। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू है। तो यहाँ पे गौर से देखें तो प्रेजेंट वैल्यू में क्या आ रहा है, एफपी पीवीएफ 84,253, पीवीएफ5 11%, 84,253 1/1 प्लस 0.11 all power 5, 84,253.59345, that is the value of your formula, that is of 50,000, and 50,000 की फ्यूचर में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 84,253। नाउ इलस्ट्रेशन फर्दर, अगर ये तो हमने फार्मूला से की है, इफ वी आर गोइंग टू यूज द टेबल, तो कौन सा टेबल इसमें यूज करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, अगेन देखें 84,000, अब यहां पे जो टेबल है ये अब किसका टेबल यूज हो रहा है, दैट इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1, यानी ये टेबल है पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का, दैट इज द टेबल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यानी $1। तो यहां पे देखें तो वैल्यूज पहले सारी जो थी फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में 1 से ऊपर थी, यहां पे देखिए सारी की सारी 1 से नीचे, कोई भी 1 के इक्वल नहीं या 1 से ज्यादा नहीं है। क्यों, सारी की सारी वैल्यूज अब डिस्काउंटिंग कम करने में है, तो इसीलिए यहां पे सारी वैल्यूज अब शॉर्ट हो गई हैं। अब क्या 11% हमारा ये रहा, और कितने 5 इयर्स था, तो देयर इट इज, नाउ दिस इज डिस्काउंट फैक्टर, नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय दिस, दैट इज नाउ द वैल्यू इज 50,000, इसे हम कहते हैं दैट इज 50,000 इज योर वैल्यू। कैरोलीन क्लिफर्ड नीड 25,000 इन 4 years, 25,000 चाहिए 4 years के बाद। What amount must it invest today if the investment earns 12% compounded annually? तो यहां पे क्या आ गया, फ्यूचर में 25,000 चाहिए, आज कितने इन्वेस्ट किए जाएं, तो देन अगेन व्हाट टेबल वी यूज, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन प्रेजेंट वैल्यू $1 टेबल, वैल्यू $1 टेबल। अब हमारे पास इंटरेस्ट क्या है जी, 12% है, देयर इट इज, एंड 4 years, तो हियर इट इज, you can see that if we are drawing the line, there it is. Now I have a 0.63552, we are going to multiply it by this and we have that 15,888, यानी आज मैं अगर इतने पैसे जमा कराऊंगा तो फ्यूचर में मेरे पास कितने आ जाएंगे, $25,000, यानी $15,000 अगर आज मैं जमा कराऊं तो फ्यूचर में कितने आएंगे, $25,000। नाउ अगेन फर्दर, अब क्या हुआ, क्वेश्चन वही है, नाउ इट्स नॉट एनुअली, इट्स नाउ क्वार्टरली। अब क्या हो गया, ये क्वार्टरली हो गया, प्रेजेंट वैल्यू है वही चीज है, अब क्वार्टरली हो गया तो कितना हो जाएगा ये, n into m, तो दैट मीन्स 4 into 4, तो दैट इज 16 इज नाउ दिस वन, और 12% डिवाइड बाय 4, तो दैट इज 3%, तो 3 and 16 दैट वी आर गोइंग टू सी इन द टेबल, यू कैन सी दैट ऑन द टेबल साइड, पीवीएफ 1/1 प्लस i की पावर n, हियर यू कैन सी दैट 16, ये रहा 16, और यहां पे हमने देखना है देयर इट इज ऑन द 3%, देयर इट इज, दैट इज आवर वैल्यू, एंड दैट इज आवर वैल्यू, मल्टीप्लाइंग इट दैट इज $15,579 इज योर करंट अमाउंट दैट शुड बी इन्वेस्टेड टुडे। सॉल्विंग अदर अननोन्स, अब अगर टेबल से अगर अदर अननोन्स फाइंड करने तो वो कैसे करने, लेट्स सी एन एग्जांपल। द विलेज ऑफ सोमोनॉक वांट्स टू accumulate $70,000 for the construction of veteran monuments in a town square. Monuments means yadgar. At the beginning of the current year, the village deposited $47,811 in a memorial fund to earn 10% interest compounded annually. How many years it will take to got on the 70,000? अब हमने क्या निकालना है, कितने ईयर लगे उसे 70,000 बनने में। नाउ फ्यूचर वैल्यू 70,000, प्रेजेंट इज 47,811, इंटरेस्ट इज 10 years एंड वी हैव टू फाइंड n। कंप्यूटेशंस कैसे हुई है वो देखें, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू पता थी, प्रेजेंट वैल्यू पता, अच्छा यहाँ पे भी याद रखिए जब हमने n या i फाइंड करनी, वी कैन इधर यूज प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला और फ्यूचर वैल्यू फार्मूला, वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे वो कौन सा यूज कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो एफ इज इक्वल टू पीवी है एंड एफ ई आई। अब यहाँ पे उसने, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है, तो वैल्यू आई है 1.46, इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर कितना होना चाहिए, 1.46। डाउन इन द टेबल हम देखते हैं कि कहाँ पे 1.46410 हो रहा है, तो यहाँ पे देखें तो इसमें नहीं, 469 है, 411 है, देयर इट इज,
That is the amount. First record it and going to see over there, and we are going to see over there. So that means 10% interest rate है आपके पास, and their 4 period is, and the 4 period is now 4 years जो हमारे सामने period नजर आ रहा है. So there it is, and you can see 4 years is your answer. Next computation is related to your overall present value. अगर वही computations मैं किससे करूं, using present value टेबल, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल यूज करूं, तो यहां पे गौर से देखें तो यहां पे आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल आ रहा है, पीवीएफ 10%. तो यहां पे गौर से देखें तो वैल्यू कितनी है, 0.683. नाउ इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में 0.683 देखूंगा, तो 10% इंटरेस्ट रेट था, तो यहां पे देखा तो ये वैल्यू लाई कर रही है, और ये यहां पे कितने पे लाई कर रही है, दैट रिलेट्स टू 4. तो यहां पे भी आंसर सेम है. तो दैट मींस आंसर रिमेन्स द सेम वेदर यू यूज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर फाइंडिंग द एन. There it is. You can see that is 4 period of 4. Solving for other unknowns. अब अगर हमारे पास और कौन कौन सी सॉल्विंग अदर हो सकते हैं वो गौर से देखिएगा. यहां पे आप देखें वही सारी एग्जांपल है. अब क्या आ रही है, wants to accumulate 70,000 for construction or VTron at the beginning. कितना है जी, deposited 4711 in a 10% interest compounded annually. How many years it will take to get on the 70,000 in memorable funds. कंप्यूटेशंस. अब यहां पे क्या हो रहा है, वही एग्जांपल, अब वो किसकी थी, वो थी उसी के लिए यूज हो रही थी जो वो एग्जांपल पहले हम कर रहे थे. दैट इज हाउ इट डिस्क्राइब्स इफ यू आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट वैल्यू. नाउ द एग्जांपल इज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. एडवांस डिजाइन नीड्स 1409870 फॉर बेसिक रिसर्च 5 years फ्रॉम नाउ. 5 साल बाद हमें इतने पैसे चाहिए. द कंपनी करंटली हैव 800,000 टू इन्वेस्ट फॉर दिस पर्पस. यानी अभी कितने, 800,000. वो कह रहा है कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, 800,000. 5 साल बाद कितने हो जाएं, 1409870. तो यहां पे क्या है, प्रेजेंट वैल्यू पता है, फ्यूचर वैल्यू भी पता है, हमें पता क्या नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं पता. यानी हमने निकालना है कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करें ताकि ये कितना हो जाए, 1.409 मिलियन. तो यहां पे अगेन फ्यूचर वैल्यू फैक्टर FVIF लगा हुआ है. अगेन डिवाइडिंग द फ्यूचर वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू एंड देन वी हैव 1.76. स्टार्ट फाइंडिंग कितना 5 years पे था, तो यहां सबसे पहले मैं गया हूं, यहां देखें 5 years पे गया हूं. 5 years पे देखें जी 1.76 कहां लाई कर रहा है, ये रहा 1.76234. कितने इंटरेस्ट रेट पे आ रहा है, 12% पे. तो इसका मतलब है हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, 12% चार्ज करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड अमाउंट. That is the value. Here you can see that. Now present value factor के साथ देख लेते हैं. present value factor के साथ अगेन वही आ रहा है, वैल्यू कितनी आई है present value factor की, 0.56743. 5 years था, अगेन फर्स्ट गो टू द 5 years, 0.6743 over here, and there it is 12%. The answer would be same. Here you can see that. अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स. कुछ अकाउंटिंग एप्लीकेशंस कितनी आती है, सिंगल कैश अमाउंट है उसकी भी आती है अकाउंटिंग एप्लीकेशंस. सम नोट्स डू नॉट इंक्लूड अ स्टेटेड इंटरेस्ट रेट. कुछ नोट्स जो है वो स्टेटेड इंटरेस्ट रेट नहीं रखते. वी कॉल दोज नोट नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट्स. इवन दो द एग्रीमेंट स्टेट इट इज नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट, द नोट डज इन फैक्ट इंक्लूड्स इंटरेस्ट. बेशक वो उसका है लेकिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है. वी कंप्यूट द इनअप्रोप्रिएट इंटरेस्ट फॉर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग नोट. हम उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग सिंगल कैश अमाउंट. उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है बाय डिस्काउंटिंग इट्स अमाउंट. एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो अप्रोच भी है. स्टेट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट नंबर 7, यानी ये फाइनेंशियल FASB का रूल नंबर 7 है. यूजिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट वैल्यू इन अकाउंटिंग मेजरमेंट. यानी प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लो इंफॉर्मेशन दोनों यूज करने चाहिए जब भी अकाउंटिंग की मेजरमेंट करनी चाहिए. द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूइंग एन एसेट और लायबिलिटी यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू इज टू अप्रोक्सीमेट द फेयर वैल्यू. क्या मकसद है कि हमने फेयर वैल्यू फाइंड करनी है हर चीज की फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. दोनों के लिए हमने फेयर वैल्यू फाइंड करनी है. तो कैसे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू. दैट इज द यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू. कि हम उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट आ जाती है. So that's the end of the today's lecture. What we have studied is about the time value of money and present value and how the present value is being calculated. We have also studied the tables of the present value and future value factors there, and also identify how these values are being found and how these values being calculated, how the decisions will be made, and further how we can find the unknown or other values like I and N. From these formulas we have also studied the formula of present value and future value, then compounding factor and discounting factor. So that's the end of the today's lecture.
अल्लाह हाफिज।